Hello friends, myself Rasika Pakaria from Abraham College. In last lecture, we were studying about the Dr. Ambedkar's view on caste, like caste के बारे में उनका thoughts on caste. As we know, social reform was always the first priority of Dr. Ambedkar. He believed that the economic and political issues should be resolved only after achieving the goal of social justice. Dr. Ambedkar's caste Dr. Ambedkar says casteism is an expression of mental slavery of the Hindus. He made them intensive. Therefore, no real change could take place without doing away the evil of casteism. Social reform was the precondition of revolutionary changes in our society. Social reform consisted of reform of the family system and religious reform. Family reform includes abolition of practices like child marriage, etc. This was important mainly because it involves upliftment of women. Dr. Ambedkar strongly criticized the degradation of women in the Indian society. He believed that women were entitled to an equal status with men and that they must have the right to educate. He lamented that the Hindu religion had driven women of the right to property. In the Hindu code bill, which it which it which he prepared, he took care that women should get a share the property. Then moving towards the next point, explaining and interpreting existing social order. Dr. Ambedkar made a comprehensive inquiry about the then existing Hindu social order and argued that the Hindu social order had the sanction of Hindu religion. In his work that include philosophy of Hinduism, Hindu social order, its essential principle and inhalation of caste, he attempted at explaining and interpreting and criticizing the Hindu social order and came up with his own normative ideas of an alternative system of society which was to be based on justice. For Dr. Ambedkar, the existing social order was formed on the basis of Hindu religion norms and these were deeply rooted in the system of Hindu चतुर्वर्मास, दैट इज द फोर क्लास. और फोर क्लास क्या थे उस वक्त? ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस. और फिर एक नया क्लास बाद में ऐड किया था, दैट इज द फिफ्थ क्लास, पंचमा, दैट इज अनटचेबल्स उसमें थे. However, he maintained that social order was not only limited to 5 divisions only. फिर ये जो 5 डिवीजन है उनके सब डिवीजन भी हुआ था या फिर सब कास्ट भी एस्टेब्लिश हुआ था जिसके अंदर हजारों लोग वगैरह थे उसमें. फिर डॉक्टर अंबेडकर also examined the religion text to understand the reason behind a class division and he found that the class system was able to survive so long because of religious scarcity. According to religious texts, different classes were created from the different parts of the divine body and thus it must be divine with that they should remain separate and distinct. Then principle of graded inequality. The first principle was the principle of graded inequality. This principle, the fundamental one, divided the society into both vertically and horizontally. और यहाँ पे सब कुछ क्या था, हायरार्की वाइज चल रहा था. लाइक ब्राह्मण सबसे टॉप पोजीशन थे, उसके नीचे क्षत्रियास, देन वैश्यास, शूद्रास एंड एंटी शूद्रास और अनटचेबल्स. द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन had spiritually moral and legal sanction and thus there was no sphere of life which was not regulated by this principle. However, has society concentrated into its occupation, the way of getting a living economic activity has remained unchanged outside the scarcity of religion, federalism with its gradation, with its lord, villains and serfs was purely social in character. There was nothing scared about it. See, the Hindu were only people in the world whose social relations are constituted by religion and made scarce, eternal and inviolate. Graded inequality was also accomplished by hierarchical and graded enlightenments to various rights to different classes. The enlightenment increased in ascending order
from untouchable to Brahmins. Now we'll move towards the point B, that is the Varnas were based on occupations. The second principle that Dr. Ambedkar put forward in interpreting Hindu social order was that the Varnas were based on occupation, and since the Varnas had divine sanction, each class has to follow the work assigned to him or her class से. The second principle जो डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा आगे वॉज द इंटरप्रेटिंग हिंदू सोशल ऑर्डर रखते हुए उन्होंने वर्नास क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन. वर्ना सिस्टम किस पे था, इट वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, एंड सिंस द वर्ना हैड डिवाइन सेक्शन ईच क्लास हैड टू फॉलो द वर्क, जो जिसका काम है वो उसने फॉलो करने का, राइट. Individuals had no choice to change his occupation and punishments were given for violating the principle of occupation. See, इंसानों के पास वो जो कास्ट को बिलोंग करता है, जैसे ट्रेडर कास्ट है तो वो ट्रेडर का ही काम करेगा, उसके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, और अगर नहीं किया तो पनिशमेंट दिया जाता था क्योंकि उसने वायोलेशन किया है प्रिंसिपल ऑफ ऑक्यूपेशन, ये जो उसने वायलेट किया है. द कास्ट सिस्टम provided the mechanism to maintain the order of the society through social and economic penalties. See, the caste system provided the mechanism to maintain the order. ये जो कास्ट सिस्टम था उसकी वजह से क्या था, सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी ही चल रहा था. मतलब जो कास्ट को आप बिलोंग करते हो वो कास्ट के लोग क्या करते हैं वही करना है आपको, उस हिसाब से आपका सारा सिस्टम चालू होगा, लाइक थ्रू सोशल एंड इकोनॉमिक पेनल्टीज. द इंस्ट्रूमेंट of social and economic boycotts were the main forms of penalties laid down against violating the codes of the system. The instruments of social and economic boycott were the main forms of penalty. लेकिन अगर आप प्रॉपर सब कुछ नहीं फॉलो करेंगे, जो आप जो क्लास को बिलोंग करते हो आप वही काम करोगे, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका बॉयकॉट किया जाएगा और पेनल्टी भी भरनी जाएगी. Since a Shudra could not undertake jobs other than serving higher caste, the upper mobility in social and economic levels was severely restricted. ये जो शूद्रास थे वो क्या कर रहे थे, they could not take job other than serving higher caste. शूद्रास का काम क्या था, हायर कास्ट के लोगों को ही मदद करना, उनके पास ही काम करना था, उनके पास दूसरा कुछ था नहीं, इसकी वजह से उन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे. फाइनली he observed that the assignment of class was not based on individual merits, it was decided by birth. से डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सब देखा, स्टडी किया और फिर उसको समझा कि ये जो भी चल रहा है, ये जो क्लास सिस्टम, फिर उसके हिसाब से आपको क्लास करना है, ये सब क्यों चल रहा है, ये एक मेरिट के हिसाब से नहीं चल रहा है, राइट. ये आप जन्म दिए आप डिसाइड हो गए, मतलब आप कौन से कास्ट में जन्म लिया आपने, उस हिसाब से आपका काम भी डिसाइड हो चुका है. नेक्स्ट पेज, डिनायल ऑफ इक्वल एक्सेस टू एडुकेशन. See, denial to equal access to education is another core feature of the caste system. See, equal education उस वक्त था ही नहीं लोगों को, education was also based on caste system. लाइक ब्राह्मण टॉप में रहते थे, तो एडुकेशन का राइट सिर्फ उनको था, और जो अनटचेबल्स है उनको एडुकेशन का कोई राइट नहीं था. इन डॉक्टर अम्बेडकर व्यूज द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल एडुकेशन इन हिंदू सोशल ऑर्डर वॉज क्वाइट नैरो. सी, एज पर डॉक्टर अम्बेडकर्स व्यू ये जो कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल एडुकेशन इन हिंदू सोशल ऑर्डर क्या था, इट वॉज क्वाइट नैरो. फॉर्मल एडुकेशन वॉज कन्फर्म्ड to the study of religious scriptures like Vedas in school, which were established for this purpose. See, डॉक्टर अम्बेडकर्स व्यू क्या है, ये जो फॉर्मल एजुकेशन इन हिंदू सोसाइटी है, इट वॉज अ क्वाइट नैरो टर्म, क्वाइट नैरो टर्म था. फॉर्मल एजुकेशन क्या था, इट वॉज कन्फर्म टू द स्टडी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लाइक वेदा इन स्कूल विच वेर established for this purpose. The state never held itself responsible for opening
establishment for study of art and school that concern life of merchant and artisans. See, स्टेट क्या है, कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा, मतलब स्टेट ने कभी कुछ नहीं किया कि बाबा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम अच्छे से लाइक स्कूल्स वगैरह ओपन करे, आर्ट्स साइंस जो है इनके लिए एनकरेज करे, राइट, इसके ऊपर कभी फोकस नहीं किया उसने, और बट उसने मर्चेंट्स और आर्टिसंस पे थोड़ा फोकस रखती थी स्टेट. इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम each class managed to transit its propensity the way of doing things it was traditionally engaged in doing. See, अभी स्टेट तो कुछ नहीं कर रही है और प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम भी नहीं था उस वक्त. तो ईच क्लास क्या करती थी, ईच क्लास ट्राई करती थी जो उनका ट्रेडिशन है, जो उनका ट्रेडिशन बिजनेस है, वैसे ही काम करूँ, वैसे ही आगे बढ़ूँ. दे यूज्ड टू ट्राई दैट. Thus illiteracy became an inherent part of class और caste system. See, तो illiteracy क्या थी, ऐसे ही चलती रही कास्ट में या फिर क्लास सिस्टम में. Fixation of rights within a class and graded inequality resulted in denial of right to education and opportunities to develop human capacities. See, fixation of rights within a class. See, आप जिस क्लास में बिलोंग करते हो उस क्लास के राइट्स, रूल्स, रेगुलेशन थे, वही आपको फॉलो करने हैं. तो फिक्सेशन ऑफ राइट्स क्या था, इट वॉज विद इन अ क्लास एंड इट वॉज ग्रेडेड इनइक्वालिटी रिजल्टेड इन डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ह्यूमन इनकैपेबिलिटीज़. आप जिस क्लास में बिलोंग करते हो उस क्लास से ही आपको वो क्लास के जो राइट्स है वही मिलेंगे. फिर आपको राइट टू एजुकेशन भी उसी पे डिसाइड, लाइक आप ब्राह्मण हो तो आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा एंड ऑल. अगर आप वॉरियर्स हो, ठीक है, तो भी आपको एजुकेशन मिल जाएगा. बट इफ़ यू बिलोंग टू द लास्ट क्लास तो क्या है, आपको एजुकेशन मिलने का कोई हक नहीं है. तो क्या है, इनइक्वालिटी ऐसी चालू थी और इनइक्वालिटी में राइट टू एजुकेशन भी नहीं मिलता था और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी किसी को नहीं मिलती, सिर्फ ब्राह्मण्स को न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती थी. तो नया अपॉर्चुनिटी मिलना, उस हिसाब से डेवलपिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड ऑल कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पे. Thus, these three principles completely disregarded individuals' ability or merit and thus exhibited an unjust society where mobility is severely restricted in all sphere of human life. Thus, these three principles, ये जो थ्री प्रिंसिपल्स इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रीडम, ये जो कंप्लीट तीन प्रिंसिपल्स है, ये उस वक्त थे ही नहीं. इंडिविजुअल एबिलिटी के ऊपर कुछ थे ही नहीं, या फिर मेरिट एंड दस एग्जिबिटेड इनजस्ट सोसाइटी. तो क्या है, ये तीनों सोसाइटी में था नहीं, इसलिए क्या थी वहाँ पे, इनजस्टिस थी सोसाइटी में. उस where mobility is severely restricted in all sphere of human life. तो क्या हो गया यहाँ पे, ये जो हर जगह से हर कोई रिस्ट्रिक्टेड है इन ऑल स्पीयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. Such a society, Dr. Ambedkar argued, cannot be an ideal society. तो डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, ऐसी जो सोसाइटी है वो आइडियल सोसाइटी हो ही नहीं सकती. ये जो सोसाइटी है, इट कांट बी एन आइडियल सोसाइटी. जहाँ पे क्या है, किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही, कैन इट बी आइडियल सोसाइटी? नो, इट कांट बी एन आइडियल सोसाइटी. And thus he felt that the existing social order needs attention. See, अब उस वक्त के लोग ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहाँ पे अनटचेबिलिटी, अनइक्वलिटी, इनजस्ट सब कुछ आता था, सब कुछ अलग अलग था और कास्ट, सब कुछ कास्ट सिस्टम पे बेस्ड था. तो डॉक्टर अंबेडकर क्या बोल रहे हैं, ये जो सोसाइटी है इट वाज नॉट एन आइडियल सोसाइटी. सो अभी अपने को एक आइडियल सोसाइटी बनानी है और उसके लिए अपने को ये एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा. लाइक अपने जो सोशल ऑर्डर है लाइक ब्राह्मण्स एंड ऑल, वो अभी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. ही नॉट ओनली सजेस्टेड द टोटल enhancement of caste or caste-based society, his point of contention was to form an ideal or just society that would be classless or casteless.
सी, सिर्फ उसने सजेस्ट ही नहीं किया, सिर्फ उसने बोला ही नहीं, उसने सोसाइटी सुधारना है, कास्ट या कास्ट बेस्ड सोसाइटी इसमें चेंज लाए, ये नहीं बोला। उसने ये भी बोला कि एक ऐसी आइडल सोसाइटी बनानी है, उसने एक आइडल ऐसी सोसाइटी बनानी है दैट वुड बी कास्टलेस और क्लासलेस। मतलब सब कोई जो अपने पास अलग अलग क्लास है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अलग अलग कास्ट है एंड ऑल, वो सब कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सो जो न्यू सोसाइटी जो अपन बनाएंगे दैट शुड बी क्लासलेस और कास्टलेस। Then moving towards the second point, removal of untouchability. How can untouchability be removed? See, आप सोचो ये अनटचेबिलिटी जो इतनी है अपने सोसाइटी में, इतने समाज में, ये कैसे निकल सकती है? अनटचेबिलिटी इज द इंडिकेशन ऑफ स्लेवरी ऑफ द एंटायर हिंदू सोसाइटी। ये अनटचेबिलिटी क्या है? इट इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लेवरी टू द एंटायर हिंदू सोसाइटी। If the untouchables find themselves chained by the caste Hindu themselves live under the slave of religious sculpture. See, अभी अपन बोल रहे हैं अनटचेबिलिटी वगैरह क्या है, ये पूरी एक चेंज है। और ये किसकी वजह से हुआ? हिंदू कास्ट सिस्टम ऐसा है जहाँ पे वो अनटचेबिलिटी वगैरह सब क्रिएट हुई है। बट क्या हिंदू लोग विदाउट ये अनटचेबल्स के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं, उनको हर काम के लिए स्लेवरी की ज़रूरत ही रहती है, स्लेव्स लोगों की ज़रूरत रहती है। सो दे आर पार्ट ऑफ दैट। देयरफॉर इमांसिपेशन of the untouchables automatically involves emancipation of the Hindu society as a whole. तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लाइक इमांसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, लाइक आप अनटचेबल्स ये सोचो ही मत, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये हिंदू सोसाइटी भी एज अ होल धीरे धीरे चेंज होगी। डॉक्टर अम्बेडकर wants that nothing worthwhile can be created on the basis of caste. डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं? जब तक आप ये कास्ट सिस्टम नहीं हटाओगे, जब तक ये कास्ट के हिसाब से सब कुछ करोगे, तब तक कुछ भी नहीं अच्छा होगा। जब ये कास्ट सिस्टम सब निकल जाएगा तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। Therefore, we can build neither a nation nor morality on this basis. See, जब तक ये कास्ट सिस्टम नहीं हटेगा तब तक ना ही अपन नेशन अच्छा बना सकते हैं, ना ही कुछ मॉरलिटी बेसिस पे कुछ अच्छे से काम कर सकते हैं अपन। मतलब ये कास्ट सिस्टम कितना डेंजरस माना जा रहा है, देखो यहाँ पे। मतलब सब कुछ कास्ट सिस्टम, एक कास्ट सिस्टम हटा दिया, अपर क्लास, लोअर क्लास, सारा ये क्षत्रिय सब कास्ट सिस्टम हटा दिया तो क्या हो जाएगा? अपना नेशन अपने आप डेवलप होगा, सोसाइटी अपने आप डेवलप हो जाएगी, मॉरलिटी अपने आप आ जाएगा, और ये इनजस्टिस जो ये सब है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। Intercaste marriage can effectively destroy the caste, but the difficulty is that people will not be prepared to marry outside their caste so long as casteism dominates their thinking. फिर अब ये कास्ट सिस्टम हटाने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर? कि वह इंटरकास्ट मैरिज करना शुरू कर दो। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज ये सबसे अच्छा तरीका है जो कास्ट सिस्टम हटा सकता है। बट ये आसान है क्या? नहीं, इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि लोग अपने कास्ट का छोड़ के दूसरे कास्ट में शादी करना, ये करना, ये सोचते ही नहीं थे। इट वॉज लाइक उनके थिंकिंग में ही नहीं था। वो डोमिनेटेड कास्टिज़म उनके लिए वो डोमिनेटेड बहुत ज़्यादा था उस वक्त, बराबर है ना। आज इंटरकास्ट मैरिज आने आम बात हो गई है, लाइक नॉर्मल है कि बाबा चल बाबा तूने इंटरकास्ट की तो की, चल की। आज अपन बच्चों को बोलते थे ना, बाबा तू लव मैच करेगा तो बाबा ये कास्ट की तो भी लड़की लाना, ये कास्ट की मत लाना, अपन बोलते ही है ना बच्चों को। तो क्या है, उस वक्त इंटरकास्ट वॉज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये। आई नो इट वॉज द कंसेप्ट दैट कैन डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम, बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि लोग उसके आगे अपने कास्ट के बाहर लड़की लाना या लड़की देना सोचते ही नहीं थे उस वक्त। डॉक्टर अम्बेडकर डिस्क्राइब सच मेथड एज इंटरकास्ट डाइनिंग और मैरिज एज फोर्स्ड फीडिंग। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, उस तरीक़ों को, वो उस मेथड को बोला इंटरकास्ट डाइनिंग या मैरिज एज फोर्स फीडिंग। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ अ मोर ड्रास्टिक चेंज। अब अपने सोसाइटी को किसकी ज़रूरत है?
एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत है। लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द क्लचर्स ऑफ रिलीजियस क्लचर्स एंड ट्रेडिशन। सी, आज अपने को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लाना है, तभी अपनी सोसाइटी कुछ चेंज होगी, अच्छी होगी। एक तो क्या है, लोग जो अपना रिलीजन, अपना ट्रेडिशन जो फॉलो कर रहे हैं वही सब गलत है, उससे लोगों को छुटकारा देना है। लाइक पुराना ट्रेडिशन, हमारे ट्रेडिशन में ऐसा लिखा है तो हम ऐसे ही करेंगे, नहीं। टाइम हैज़ चेंज, टाइम के हिसाब से थोड़ा सा ट्रेडिशन भी चेंज करना ज़रूरी है। तो लोगों जो ये रिलीजन, ट्रेडिशन, इसमें सब में अटके हुए, इनसे लोगों को लिबरेट करना आज ज़रूरी है। एवरी हिंदू इज़ अ स्लेव ऑफ वेदा एंड शस्त्रास। सी, हर हिंदू ये वेदास और शस्त्रास का नौकर है, राइट। वेदास में जो लिखा है, शस्त्रास में जो लिखा है, एवरी हिंदू फॉलोज दैट। ही मस्ट बी टोल्ड दैट दिस स्कल्पचर्स परपिट्रेट रॉन्ग एंड देयरफॉर नीड टू बी डिस्कार्डेड। सी, अभी जो स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी हुई है, हर हिंदू क्या है, ये स्लेव्स है शस्त्र का, वेदास का, और ये सब स्क्रिप्ट में अपने सब लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये स्क्रिप्ट में जो लिखा है ना, वो फॉलो करना छोड़ दो। आज के ज़माने में जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो गलत है, तो ये स्क्रिप्ट सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए। Abolition of caste is dependent upon destroying the glory of this sculpture. See, abolition of caste is dependent. अब ये कास्ट का, अगर आपको कास्ट सिस्टम पूरा अबॉलिश करना है तो आप नया स्कल्पचर, थोड़ा नया स्कल्पचर देखो, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। Till the sculpture dominates the Hindu, they will not be free to act according to their conscience. See, till the sculpture dominates the Hindu. जब तक ये स्कल्पचर सारे हिंदू को डोमिनेट करेंगे, तब तक अपना सोसाइटी नई चीज़ एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ना ही सोसाइटी कुछ फ्रीली एक्ट कर पाएगा, ना ही सोसाइटी फ्री होगा। इन प्लेस ऑफ द अनजस्ट प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी हायरार्की, in place of the unjust principle of heredity hierarchy, we must establish the principle of equality, liberty and fraternity. See, in place of unjust principle, से जो unjust principle की जगह क्या है, अपने को ये जो सब हेरिडिटी वाइज, हायरार्की वाइज चल रहा है, उधर अपने को प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी लानी चाहिए। एंड दे शुड बी द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलीजन, और ये क्या रहना चाहिए, और ये एक प्रॉपर फाउंडेशन रहना चाहिए एनी रिलीजन का। Self-respect among untouchables. However, Dr. Ambedkar knew that all this involves a total change in Hinduism, which would take a very long time. See, डॉक्टर अंबेडकर क्या बोल रहे हैं कि बाबा अपने को पूरा हिंदू सिस्टम चेंज करना है, हिंदुइज्म पूरा चेंज करना है, और ये क्या एक रातों रात में हो जाएगा क्या, नहीं, इसके लिए अपना बहुत सा टाइम जाना है। Therefore, along with this suggestion for basic change, he also insisted on many other ways for the upliftment of the untouchables. Therefore क्या है, therefore along with this suggestion for basic change, अब ये बेसिक चेंज के सजेशन के लिए क्या है, उसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया ताकि अनटचेबल्स का भी अपलिफ्टमेंट हो, वो भी आगे बढ़े, उनको भी कुछ ना कुछ तो अच्छे से चले। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशन, द अनटचेबल्स had completely surrendered to the domination of the upper class. See, under the influence of traditions. See, ट्रेडिशन को मानते हुए, ट्रेडिशन को देखते हुए क्या हो गया, ये जो अनटचेबल्स है उन्होंने खुद को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया अपर क्लास को, उन्होंने खुद को पूरे अपर क्लास की ओर सरेंडर कर लिया, मतलब जो अपर क्लास बोलते हैं वो वही करने लग गए। They had lost all spirit to fight and assert themselves. ये जो अपर क्लास थे उनका पूरा स्पिरिट ही चला गया, उन्होंने पूरे खुद की, मतलब खुद के लिए लड़ने की शक्ति, क्षमता सब भूल गए। द मिथ ऑफ इनहेरिटेड पोल्यूशन also considerably influence the mind of untouchables. See, the myth of inherited pollution, ये क्या है, ये लोगों के मन में अनटचेबल्स वगैरह इतना दिमाग में डाल गया है ना, इतना दिमाग में जा चुका है। Therefore, it was necessary to arouse their self respect. अब टाइम आ गया है, ये जो अनटचेबल्स है इन सब का क्या है, आप इनके जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी वो सब खो चुके थे, राइट, उन्होंने पूरा अपने आप को अपर क्लास के पास सरेंडर कर दिया था। अब टाइम आ गया कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाए, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस जागरूक करे।
untouchable should realize that they are the equal of caste Hindu. See, अनटचेबल्स को ये रियलाइज करना है कि बाबा वो भी हिंदू कास्ट के जैसे ही इक्वल है. दे मस्ट थ्रू अवेद्या बॉनेज. उनको छोड़ देना चाहिए अपना बॉनेज, मतलब मैं ये नीचे क्लास में बॉर्न हुआ हूँ, अनटचेबल क्लास में बॉर्न हुआ हूँ, तो मैं वैसा ही रहना चाहिए. ये जो सोच है ये उन अनटचेबल्स लोगों को, क्लास को छोड़ देनी चाहिए. अगर वो छोड़ेंगे, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखेंगे, तब क्या है, तब वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे. वरना क्या है, वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे, ना ही उनका अपलिफ्टमेंट कुछ भी अच्छे से होगा. We'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll start with the attack on the caste system. That will be our 4th point. Meanwhile, you can read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.